Gracious God, Heavenly Father, we are coming to you, listen to your word of God. Please speak with us, give your wisdom for our life. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. This time I like to bring you the warm greetings from Indianapolis Tamil Church. और इस समय में मैं इंडियानापोलिस तमिल चर्च की ओर से मैं आप सभी को शुभकामनाएं लाता हूं। I give my sincere thanks to Pastor Errol King and his church. और मैं पास्टर किंग और उनके कलीसिया को भी धन्यवाद कहना चाहता हूं। So it's a great privilege to be here with your church worshiping Hindi. और ऐसे ही कलीसिया के साथ मिलकर हिंदी में परमेश्वर की आराधना करना ये कितना अच्छा सौभाग्य है, ऐसा मैं मानता हूं। I was in New Delhi for a year with my counseling program. और मैं नई दिल्ली में 1 साल तक था। So that time I eagerly learned Hindi. और तब मैंने थोड़ा हिंदी सीखा है। 2 roti and aloo butter paneer. और मैंने सीखा है कि ये रोटी और आलू और बटर पनीर के बारे में। Then I go public transport. I need to supposed to get down. और जैसे मैं रवाना करता था और ऐसे ही चलने के लिए I don't know what to say to ऊपर or नीचे or something. So they took me for another 10 miles because of I don't know. I said कहाँ जा रहे, where need to get down. I said चलो 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 चलो. तो मुझे पता नहीं था कहाँ उतरना है और कहाँ चढ़ना है, तो मैं बस ऐसे ही बैठा रहा और चलता रहा बोलते हुए कि चलो चलो। But I finished and graduated in New Delhi with my Hindi language. लेकिन फिर भी मैं नई दिल्ली में था और ऐसे ही थियोलॉजी में मैंने उसको पूरा भी किया। Yeah, many my friends in Indianapolis. There are Anil Chaugan is India Clay own restaurants. My best from Noida. I speak little bit Kannada or like that, so I'm pretty good with Hindi. और इंडियानापोलिस में कई सारे दोस्त मेरे हैं जो हिंदी बोलते हैं और मैं उनसे ऐसे थोड़े-थोड़े बात करता हूँ जैसे खाना खा लिए। So Pastor Errol gave me time limit. I need to speak less than 12 minutes. और हमारे पास्टर साहब ने मुझे समय दिया है कि मैं सिर्फ 12 मिनट ही बोलूँगा। So he took me to translate for another 12 minutes. और मेरा जो ट्रांसलेशन है वो और एक 12 मिनट होगा। So it's a great topic today. I'm going to be speak about the Good Shepherd today. और मैं एक अच्छे ये जो चरवाहा है उनके बारे में बात करना चाहता हूँ। Because of he asked me to speak about the study of Psalm 23rd. Because of you did 22 last week, I think. और क्योंकि उन्होंने मुझे कहा है कि भजन संहिता 23 से हम पढ़ेंगे और उसी से हम बात करेंगे। So praise God and भगवान की प्रभु की मसीह की जय। तो जय मसीह हो, praise the Lord. Hallelujah, God gave this wonderful time. और परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं कि वो हमें एक अच्छा समय दिया है। Amen for you and me and for this time. और आमीन कहता हूँ कि आपके लिए और हमारे लिए सभी के लिए। Psalm 23rd is the favorite passage of all the people here. और ये जो भजन संहिता 23 है वो हम सभी जो है इस भजन संहिता को जानते हैं। David is talking about God more personally. He clearly tells that the Lord is my shepherd. और यहाँ पे हम देखते हैं कि दाऊद जो है परमेश्वर के बारे में बोलता है और कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। On those days, the Israelites tells about God. God is God. और उन दिनों में जो इस्राएली लोग थे वो परमेश्वर को सिर्फ परमेश्वर कह के पुकारते थे। But David, that time he tells God is my shepherd. लेकिन दाऊद ने उन दिनों में भी कहा कि यहोवा मेरा चरवाहा है। He has the personal relationship with a sheep and God as a shepherd. क्योंकि उन्हें एक व्यक्तिगत संबंध था जो भेड़ें हैं मेमने हैं उनके साथ। David starts the psalm
The Lord is my shepherd, I shall not want. और देव ऐसे इस भजन संहिता शुरुआत करता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। God knows personally each sheep. और जो परमेश्वर है वो सभी हर कोई मेमने को जानता है, Because of He is our shepherd. क्योंकि वही हमारा चरवाहा है। The Lord, the shepherd, knows each sheep, each one of you and me. और जो चरवाहा है वो पूरे भेड़ को जानता है, हर एक जो है मेमना उन सभी को वो जानता है। Here we are talking about the concerning shepherd. और हम आज जो है वो चरवाहे के बारे में बात कर रहे हैं। The shepherd is comforting shepherd. और ये चरवाहा है वो हमें देखभाल करता है। The shepherd is a life-giving shepherd. और वो जीवन देने वाला चरवाहा है। That is for you and me. और ये चरवाहा जो है वो आपके लिए और हमारे लिए है। That is for entire world. और पूरे संसार के लिए भी है। You can see in John 10:10. और ऐसे ही हम यूहन्ना 10:10 में भी देख सकते हैं। There are very beautiful words about talking about John, about the Lord is my shepherd. और वहाँ हम देखते हैं कि सुंदर वचन जो कहता है कि परमेश्वर उनका चरवाहा है। Here he is talking about the verse 2, the Psalm 23, the Lord provide our needs. और यहाँ पे कहता है कि परमेश्वर जो है हमारे घटियों को पूरा करेगा। Sheep flocks cannot out of their needs, but the shepherd knows will to feed them, take care of them. और ये जो भेड़ है वो बोल नहीं सकते हैं कि उनकी जरूरतें क्या हैं, लेकिन चरवाहा जरूर जानता है कि उनकी जरूरतें क्या होते हैं। So God does not provide seasonal or occasionally, but He always taking care of, give the eyes on you and me as a shepherd. और ये चरवाहा जो है वो ऋतु के अनुसार काम नहीं करता है, लेकिन वो हमेशा जानता है कि हमें क्या चाहिए। We see how the God taking care of us. Matthew chapter 6, 7 and 8. और हमें पता है कि परमेश्वर हमें कैसा संभाल रहा है, वैसे ही मत्ती 6 और 7वें अध्याय में हम उसे देख सकते हैं। When you pray, और जब आप उनसे मांगते हैं, do not keep on babbling like pagans. और जब आप प्रार्थना करते हो तो जो अन्य लोग हैं उनकी तरह प्रार्थना नहीं करना। For they think and protects them, He always watch over them. The same way God watches over and restores in you and me. और जैसे परमेश्वर जो चरवाहा जो है देखता रहता है, वैसे ही परमेश्वर की उसके आंख जो है हमारे ऊपर हमेशा है। That is, God says in the verse 3, the Lord restores His people. और इसीलिए तीसरे वचन में हम देखते हैं कि जो उनके लोग हैं परमेश्वर उनको अगुवाई करता है। That's why Luke says in chapter 22, 61, 62, Peter repented and Jesus restored him. और ऐसे ही हम लूका रचित सुसमाचार में देखते हैं कि जो पतरस को प्रभु ने संभाला है और उन्हें छुड़वाया है। The same shepherd restores you and me from this world. और वही चरवाहा है जो हमें और आपको मुक्ति दिलाता है। Verse, we can see the verse 4 is the Lord guides His people. और हम देखते हैं 4वें अध्याय वचन में कि परमेश्वर हमारी संभालता है। When we see our rural places, the shepherd taking the flocks, sheep, whenever there is green area, green patches, he took there and give waters and they feed them always in the green area to feed them. और अगर हम गांव में देखते हैं तो चरवाहे हैं उनको भेड़ को लेके चलते हैं और जहाँ पे हरी यहाँ पे चराइयाँ हैं वहां से उनको उस भेड़ों को लेके चलता है। The same God leads you and watch over us in restores in our life. और वही परमेश्वर जो है वो हमारे जीवन को भी संभाल रहा है और वही हमें भी देख रहा है। To glorify God's name. ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। Amen. Amen. You will see the verse 5, the Lord protects and comforts His people. Verse 5 and 6. और हम देखते हैं कि 5वें और 6वें वचन में कि परमेश्वर जो है हमें बचाता है और निश्चय हमारे भलाई के लिए है। You see, the shepherd has the staff and rod in his hand to protect the sheep. और हम देखते हैं कि चरवाहे के हाथ में जो है लकड़ी है ताकि वह हमें संभाल सके। And also the
he also, the God, has his words for the protect, the comfort all the time nowadays in for you and me in this dangerous world. और वैसे ही जैसे हम भयंकर इस समय में चल रहे हैं, परमेश्वर जो है वो हमें संभाले रखता है। There are so many worries nowadays in our life. और आजकल जो है हमारे जीवन में कई सारे चिंताओं के द्वारा हम चलते हैं। Especially corona, pandemic and virus, whatever you see. और ये जो महामारी है और जैसे अनारोग्य ये चल रहा है, But God protect you and me and He is ready to give His life. और परमेश्वर जो है आपको और मुझे संभाल रहा है और परमेश्वर ने अपना जीवन हमारे लिए दिया है। That's why the David is telling about his experience in 1 Samuel chapter 17, 34 to 36. David fights with a lion and bear and protect his foes those days. और इसीलिए हम देखते हैं कि दाऊद जो है वो एक सिंह से भी लड़ता है और अपने भेड़ों को उनसे बचाता है। Also, the 1 Samuel chapter 23, 1 to 21, speaking about how David was saved from King Saul and how he was comforted by God. और हम देखते हैं कि 23वें अध्याय में भी पहले सामुएल की जैसे दाऊद ने भी परमेश्वर उन्हें संभाला है और कैसे वो सौल से बचाता है। Just to keep in our mind, in our hearts, the Lord is our shepherd. और ये हमेशा आप उसे याद रखें और अपने मन में रखें कि परमेश्वर यहोवा अपना चरवाहा है। God knows his sheep. और परमेश्वर उनके भेड़ को जानता है। He leads the sheep. और वही उन भेड़ों को संभालता है। Takes with his sheep. और उस भेड़ों को ले चलता है। Save his sheep. और उस भेड़ों को उद्धार दिलाता है। Satisfies his sheep. और उनके भेड़ जो है उन सभी को देता है। Even he dies for his sheep. और वो अपने प्राण को भी उस चरवाहा Even he units his sheep. और जो है वो चरवाहा जो है वो अपने भेड़ों के लिए रखता है। That's why the shepherd is Jesus is our shepherd now. और इसीलिए हम कहते हैं कि यीशु मसीह हमारा चरवाहा है। We call the TLC. और हम इसीलिए जो है तीन शब्द है TLC, Tender. और ये जो पहला है Care. और दूसरा है उनका देखभाल करना, Love. और तीसरा प्रेम। Tender, love, care. और ये जो इस रीति से है कि टेंडर और दूसरा प्रेम और उसके बारे में देखभाल करना। So the good shepherd is in our life is with giving all the comforting care in every moment, every problem, every anticipated in our life to get victory. और हम देखते हैं जब चरवाहा है वो हर रीति से हमें देखभाल करता है और हमारे जो भय है उनसे हमें बचाता है। Now we can see that Jesus is the great shepherd. और हम उससे जानते हैं कि यीशु मसीह जो है वो एक महान चरवाहा है। Jesus to know the Father and he interestingly to talking with the Father to safeguard for us. और यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर पिता से बात करते हैं और बात करते हुए अपने भेड़ों को बचाता है। But finally Jesus gave his life for you and me to get life, eternal life through him. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो हमारे लिए अपना जीवन जो है कुर्बान किया है ताकि हम अनंत जीवन को पा सके। So Jesus telling about he gives his life for the sheep. और यीशु मसीह जो है अपना जीवन दिया है उनके भेड़ों के लिए। Because of he tells very beautifully, he listened to the sheep and the sheep listened to him. क्योंकि उनके भेड़ जो है वो उनके मालिक के जो यीशु मसीह के को मानते हैं और उनको पहचानते हैं। The Tamil church pastor prayed about telling about the sheep should not be go friend and asking the shepherd follow the sheep. No, the shepherd always need to be a friend, the sheep following him. और तमिल कलीसिया में ऐसे कहा है पासवान की जो भेड़ है वो जो है सामने नहीं चलना है बल्कि चरवाहा जो है वो सामने चलता है और भेड़ों को चलाता है। That's where Jesus was in our life
need to be front and leads for us. और वैसे ही यीशु मसीह भी अपने जीवन में रहता है और वह सामने रहता है और हमें चलाता है। He listens to us, we listen to him. और वह हमारी सुनता है और हम यीशु मसीह की सुनते हैं। Because of he cares for us, क्योंकि वह हमें he saves for us. और वही हमें रक्षा देता है। Until he returns, he is talking with his Father to save us and give life. और जब तक वो लौट के नहीं आता तब तक वो परमेश्वर पिता से बात करता है। So this time for you and me, God gives a wonderful the communion, talking about His blood and the bread is given to forgive our sin. और इस समय जो है परमेश्वर ने हमें ऐसा प्रभु बोध जो लेते हैं और हमने पापों को क्षमा किया है। Because of the shepherd gives this life to forgive our sins and telling us, take and eat, this is my body, forgive you. और वैसे ही चरवाहा ने अपना जीवन हमें लिए दिया है और उन्होंने कहा है यह मेरा शरीर है, इसे खाओ ताकि आपके पाप जो है वो क्षमा किए जाएंगे। Because of sometime we are coming to Indian culture and background, we know if you go to Prabhu or temple, they give something to get to refresh, but this is not like that. Yes, yes. और ऐसे ही हम कई और मंदिर को जाते हैं तो वो हमें खाने के लिए थोड़ी चीज देते हैं, वो ऐसा नहीं है। This is for given the life God, given the life Jesus died for you and me to save in this world. और हमें यह याद दिलाता है कि परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे लिए उनका जान दिया है। Jesus loves you, Jesus cares for you, Jesus continues to blessing you and me. और यीशु मसीह हम सबसे प्रेम रखता है और यीशु मसीह हमें संभालता है और वही हमें रक्षा करता है। Because God is so loved the world. क्योंकि परमेश्वर जो है इस संसार से कई प्रेम रखता है। He gave His only begotten Son क्योंकि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र को दिया है for you and me, और आपके लिए और हमारे लिए for this world. और पूरे संसार के लिए। Jesus is our shepherd. और यीशु मसीह ही हमारा चरवाहा है He died for us. और वह हमारे लिए उन्होंने मृत्यु पाया है। Always He knows the provides. और उसे जानता है और वह हमें देता है। He protects and restores in our soul. और हमारी रक्षा करता है और हमें मुक्ति भी दिलाता है। Believe Him, और उस Trust पर him. विश्वास रखो follow Him, और उसी का पीछा करो have faith on Him. और उसी पे आप विश्वास रखो। Our Prabhu will continue to bless us and keep us safe. और यीशु मसीह हमें आशीष देगा और हमें संभालता रहेगा। In Jesus' name, Amen. यीशु मसीह के नाम से आमीन। Blessing you all. और सभी को आशीष देता